Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself and also preparing well for your exams. And I hope that your English paper has gone well. So, today we will be starting with our new chapter, that is, We Saved a Whale, which is from your Term 2 syllabus. So, let's start our today's class, that is with the Unit 8 chapter We Saved a Whale. Now, this is a story related to the students in Sri Lanka who went for a picnic, and over there near the sea they saw a whale calf, that means a baby or a young one of a whale. The young one of whale is called calves. Okay, so the young one of the whale was trapped between the rocks, and they decided to help that calf and save that calf, and they also succeeded in that activity. So we would be seeing the story. Before moving ahead with the story, we would just read the bits of information which is given about the whale over here. So let's see what the whale says over here. So let's read this interesting bits of information about whales. What is the difference between a whale and you? That is something which you would be writing it down afterwards. Dear whale, dear friend, I am a blue whale. We whales are the largest animals on earth. We breathe like you through two nostrils called blowhole, which is on the top of our head. When we breathe, we send a big spray of water about 30 feet high up into the air. We do not lay eggs like fish. We are born as little whale calves. A group of whales is called a pod. We grow up to 100 feet long and we weigh about 180,000 kilograms. And we live for about 80 to 90 years. It's a kind of letter which is being written by a whale to his friend, right? तो वो क्या बोल रही है whale कि whale is considered to be the largest animal on the earth. वैसे आपको पता ही होगा कि it is considered to be largest animal, सबसे बड़ा animal. वो भी अपने ब्लो होल से ही ब्रीथ करती है. जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं दो, वैसे ही उनके भी होते हैं जो उनके सर के ऊपर होता है. यू कैन सी दिस, द थिंग विच इज बीइंग स्प्रेड, द वाटर इज बीइंग स्प्रेड फ्रॉम देयर, दैट इज कॉल्ड ब्लो होल, राइट. एंड वेन एवर दे ब्रीथ, वो जो होल है उधर से एक बड़ा सा पानी का स्प्रिंकलर निकलता है विच इज़ अबाउट 30 फीट हाई अप इन द एयर. मतलब इतना ऊपर जाता है उनका जो, जब वो ब्रीथ करते हैं तब, ठीक है. और वो लोग एग्स नहीं ले करते हैं, राइट. व्हेल इज कंसिडर्ड टू बी अ मैमल, राइट. और वो पानी में रहने वाला मैमल है जो बच्चे को जन्म देता है. इट गिव्स बर्थ टू द यंग वन, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. जैसे ह्यूमन बींग्स बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे ही ये लोग भी बच्चे को जन्म देते हैं. दे डोंट ले एग्स, राइट. और जो बच्चे होते हैं, जो यंग वन मतलब बेबी वेल जो होता है, उसको कहा जाता है काव्स. ओके. अ ग्रुप ऑफ वेल मतलब पूरा एक ग्रुप हो तो उसको कहते हैं पॉड. एंड इट ग्रोज अप टू 100 फीट लॉन्ग. वी वे अबाउट 180,000 किलोग्राम्स. उसका वज़न इतना ज़्यादा होता है और वो अराउंड 80 to 90 ईयर्स जी सकते हैं, ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी दैट इज़ अ टेबल गिवन ओवर हियर, जिसमें एक कॉलम के अंदर व्हेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है. और ये जो दूसरा वाला सेक्शन है जो है यू, वो आपको लिखना है. ओके. सो यू हैव टू फिल इट बाय योर सेल्फ. दैट इज द होमवर्क फॉर यू. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज स्टोरी, that is We Saved a Whale. This was an information about the whale. Now we will study about the story which is over here. So I request you all to turn your page onto 100. Okay, now let's read the story and answer the following questions below.
It was a beautiful morning in Telwata, a fisherman's village on the southwest coast of Sri Lanka. School children from the neighboring town Hikkadua were enjoying their weekend year. Their teachers and a few parents played with the children. So this is the story which is taken from a श्रीलंकन स्टोरी. ठीक है, ये यहाँ की स्टोरी नहीं है, श्रीलंका में लिखी हुई एक स्टोरी है और वहीं के बारे में बात हो रही है. एक जगह है जिसका नाम है टेलवाटा और वहाँ की अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है, ब्यूटिफुल मॉर्निंग. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फिशरमैन्स विलेज, मतलब वहाँ पे फिशिंग ज़्यादा होती होगी इसलिए. एंड इट इज़ ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका. और वहाँ पे बाजू के टाउन, नेबरिंग टाउन का मतलब क्या होता है, बाजू वाले टाउन के स्कूल के बच्चे आए हुए थे पिकनिक के लिए और उस टाउन का नाम क्या था, हिक्काडुआ. एंड दे वर एन्जॉइंग देयर वीकेंड. ये वीकेंड का मतलब क्या होता है, वीक का एंडिंग, दैट इज सैटरडे और संडे. देर आर 2 days विच कम्स अंडर द वीकेंड, दैट इज सैटरडे एंड संडे. Their teachers and a few parents played with the children. और वहाँ पे टीचर्स भी थी. I told you right that was a picnic. So टीचर्स भी थे और कुछ पेरेंट्स भी थे बच्चों के साथ. Now let's see the conversation between the two of them. One is Nihinsa and the teacher is Miss Sanuthi. Miss, our castle looks real, Nihinsa said to her teacher Miss Sanuthi. Yes, the teacher smiled, dusting off sand from her clothes. So there is a conversation between two of them. The schoolgirl named Nihinsa and her teacher named Miss Sanuthi. So निहिंसा ने अपनी टीचर को क्या बोला कि हमने जो कैसल बनाई है, कैसल मतलब जहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस रहते हैं, राइट, रियल वाला कैसल. ये कौन सा है, सैंड कैसल है जो उन्होंने बनाया है. तो वो बोल रही है कि ये जो कैसल बनाया है वो काफ़ी रियल रख रहा है. सो टीचर ने बोला हाँ बिल्कुल सही है. एंड शी स्माइल्ड एंड शी डस्टेड ऑफ द सैंड फ्रॉम अ क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़े पर जो सैंड लगी होगी वो गिराई उसने. जस्ट देन अ वेव स्वेप्ट अप, मतलब उसी वक्त एक वेव आई वहाँ पे. वेव मतलब सी वेव, ठीक है. इट ब्रोक अ लिटिल अवे फ्रॉम द सैंड कैसल बट द वाटर रैन अप टू इट. द कैसल स्लोली डिजॉल्व्ड इन द वाटर. नाउ ब्रोक का मतलब क्या होता है, द वेव फेल ऑन द बीच एंड डिजॉल्व इन टू द फोम. मतलब जो वेव होता है वो ऊपर जाता है, राइट, टाइड की तरह, और वो नीचे गिरता है. तो जहाँ पे वो गिरता है पानी ऊपर जाके, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे पानी ब्रेक हुआ, राइट. दैट मीन्स उसका जो फ्लो था वो ब्रेक हो गया वहाँ पे, और वहाँ पे फोम क्रिएट होता है. यू माइट हैव सीन दैट, राइट, कि जब पानी वेव्स बन के आता है और जहाँ जाके टकराता है, जहाँ पे शोर पे आके, वहाँ पे फोम हो जाते हैं. लेकिन वो कहाँ हुआ, थोड़ा ही सैंड कैसल से पीछे, मतलब जहाँ पे सैंड कैसल बना था उससे थोड़े ही पहले वो पानी का जो वेव था वहाँ पे टूट गया. लेकिन जो पानी होता है वो ऑब्वियसली वहाँ से थोड़ा आगे हो आता है ना. जहाँ पे वो वेव ब्रेक हो जाता है वहाँ से वो थोड़े आगे चला जाता है. और जैसे ही वो आगे गया वो कैसल तक पहुँच गया जो उन्होंने बनाई थी, और वो कैसल धीरे धीरे पानी में डिज़ोल्व हो गई. डिज़ोल्व हो गई मतलब टूट के बह गई, साथ में मिक्स हो गई. ओके. Nihinsa, the tide is coming in. Remember, there was no water beyond those black rocks when we started making our castle at 10? Mrs. Sanuthi said. Come, let us walk on the beach. So, उसकी टीचर ने उसको क्या बोला, किसी वापस दूसरी टाइड आ रही है. द टाइड इज कमिंग इन मतलब वापस अंदर आ रही है. और उसने उसको याद दिलाया कि जब हमने स्टार्ट किया था कैसल बनाना, एट द टाइम व्हेन वी वर मेकिंग कैसल एट 10 o'clock, उस टाइम पे पानी ब्लैक रॉक्स के भी पीछे था. बियॉन्ड द ब्लैक रॉक्स मतलब ब्लैक रॉक्स जहाँ पे वो लोग बना रहे होंगे उधर ही होंगे, और उसके भी पीछे मतलब उससे भी थोड़े पीछे था पानी. और अभी पानी धीरे धीरे आगे आ रहा है, राइट. एंड शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट लेट्स गो फॉर अ वॉक ऑन द बीच. चलो हम चलने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं. Yes, we will look for shells, Nihinsa jumped. But the castle.
सो निहिंसा ने एकदम से उसको लगा कि हाँ इट्स वेरी नाइस, इट इज़ एक्साइटिंग वर्क, विल गो एंड लुक फॉर द शेल्स। शेल्स मतलब मालूम होगा आपको, जो छोटे छोटे वाइट कलर के मिलता है ना, वो जो सी के पास मतलब सैंड में लगे हुए होते हैं, मतलब सैंड में ऐसे फिक्स हो गए हो ऐसा लगता है, लेकिन वो निकल जाता है। तो वो लोग ढूंढने गए, लेकिन उसको अपनी कैसल भी बनानी थी, और वो कैसल जो ऑलरेडी बनाई थी वो तो ऑलरेडी टूट गई थी। सो उसकी टीचर ने क्या कहा, वी कैन मेक वन अगेन इन द इवनिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम द वाटर, सेड मिस सनोथी स्माइलिंग। उसकी टीचर ने उसको बोला कि कोई नहीं, हम दूसरा कैसल बनाएंगे इन द इवनिंग, और वो भी पानी से थोड़ा दूर बनाएंगे ताकि वो बह नहीं जाए। सो निहिंसा स्किप्ड अ लिटिल अहेड ऑफ अ टीचर। स्किप्ड का मतलब होता है जम्प्ड फॉरवर्ड लाइटली बाय हॉपिंग ऑन ईच फुट, दैट मीन्स जंपिंग काइंड ऑफ थिंग। जैसे आप स्किपिंग करते हो ना रोप से, तो कैसे कूदते हो, वैसे ही निहिंसा अपनी टीचर से थोड़ी ही आगे स्किप कर रही थी। फ्लिप फ्लैप फ्लिप दे बोथ हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, और सडनली उन्होंने कुछ आवाज़ सुना। ऐसे मतलब पानी में जैसे आवाज़ होता है ना, कोई चीज़ मारते हैं ना तो ऐसा आवाज़ आता है, फ्लिप फ्लैप फ्लिप जैसा। तो ऐसा ही कुछ आवाज़ उन्होंने सुना। इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड दोज टॉल क्रूकेड रॉक्स, कम लेट्स लुक, द टीचर सेड हरिंग। निहिंसा रैन टू कीप पेस। सो ये जो आवाज़ आई वो उनको लगा कि कहाँ से आ रही है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड दैट टॉल एंड क्रूकेड रॉक्स, मतलब जो उधर रॉक्स दिख रहे थे उसके पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो ऐसा लगा। और वो लोग ने सोचा कि चलो हम जाके देखते हैं। एंड दे बोथ हरीड, द टीचर स्टार्टेड हरिंग, मतलब उन्होंने स्पीड से चलना चालू किया। और निहिंसा जो भी छोटी थी, तो उसके साथ चलने के लिए, मतलब टू कीप द पेस, दैट मीन्स टू मेंटेन द स्पीड विद द टीचर, शी स्टार्टेड रनिंग। ठीक है। Oh dear, a little whale calf is stuck in the rocks. She must have got trapped last night when the tide went out, Miss Sanuthi said. So, वहाँ जाके जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे क्या था, एक व्हेल काफ स्ट्रैप हो गई थी, मतलब वो रॉक्स के बीच में स्टक हो गई थी। राइट, एज आई टोल्ड यू, व्हेल काफ मीन्स द यंग वन ऑफ द व्हेल। एंड शी मस्ट हैव गॉट ट्रैप्ड लास्ट नाइट, वो वहाँ पे कैसे ट्रैप हो गई होगी, फिट हो गई होगी, व्हेन द टाइड वेंट आउट। टाइड वेंट आउट मतलब पानी के साथ आ तो गई, लेकिन पानी का बहाव धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टाइड का मतलब जो राइज आता है ना पानी में, और जो वेव बनता है, राइट, तो वो वेव्स शाम होते होते सब कम हो जाते हैं। ठीक है। सो उस वजह से वहाँ पे वो फिट हो गए, और उसके बाद पानी का जो टाइड्स होते हैं वो आने बंद हो गए होंगे, इसीलिए वो वहीं पे रह गई। निहिंसा न्यू वॉट अ व्हेल वॉज, एंड दिस काफ वॉज एज बिग एज एन एलिफेंट। अभी निहिंसा को इतना तो मालूम था कि व्हेल क्या है, और ये जो काफ था वो काफ़ी बड़ा था, इट वॉज एज बिग एज एन एलिफेंट। राइट। The sun shone on its body. We must save her, the teacher said as she ran to wet her shawl in the sea. Get help. मतलब वहाँ पे देखा उन्होंने कि वहाँ पे वो व्हेल काफ जो है वो स्टक हो गई है। अभी वो अकेले दोनों क्या करेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या बोला टीचर ने कि हमें उसको बचाना होगा, और टीचर ने बोला कि गो एंड गेट द हेल्प, मतलब दूसरे लोगों को भी बुला के आओ। और टीचर ने क्या किया, खुद अपनी शॉल को गीला किया पानी में, और फिर जाके उसके ऊपर रखा, बिकॉज व्हेल लिव्स इन वाटर, राइट। लेकिन अभी वो जहाँ पे स्टक है वहाँ पे पानी नहीं है, तो उसको वापस पानी के अंदर लेके जाना है। अभी उसको कोई उठा के तो लेके जा नहीं सकता है, तो उसके बदले क्या करना पड़ेगा, पानी को उसके पास लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उसको उठा के नहीं लेके जा सकते हैं पानी में, इट इज़ वेरी हैवी। उसके बदले उन्होंने क्या सोचा कि दे हैव टू ब्रिंग द वाटर ओवर देयर, राइट। सो व्हाट डिड शी डू, शी जस्ट पुट हर शॉल इन द सी, उसको पूरा वेट किया और उसके पास लेके गए। निहिंसा रैन डाउन द बीच वेविंग हर रेड स्कार्फ शाउटिंग, अ बेबी व्हेल इज ट्रैप्ड इन द रॉक्स, हेल्प। निहिंसा तुरंत ही बीच के पास गई जहाँ पे बाकी सब होंगे, और उसके पास जो रेड स्कार्फ होगा उसने पहना होगा वो हेल्प के लिए दिखा रही थी। शी वॉज वेविंग इट इन द एयर। वो नॉर्मली आपको मालूम होगा कि नॉर्मली रेड कलर का कुछ भी चीज़ होता है
वो यूज़ किया जाता है किसी को वार्न करने के लिए या किसी से हेल्प मांगने के लिए। तो वैसे ही वो भी गई बीच पर, मतलब जहाँ पे बाकी सब लोग होंगे, और वहाँ जाके शी स्टार्टेड शाउटिंग दैट अ बेबी व्हेल इज ट्रैप्ड इन द रॉक्स। मतलब एक बेबी व्हेल जो है वो वहाँ पे रॉक्स के बीच में फंस गई है। सो प्लीज कम एंड हेल्प एवरीवन। The teachers gathered the children and rushed to the spot. The parents, drivers and bus conductors joined too. जो टीचर्स थी वो वहाँ पे गैदर हो गई, राइट। और जो बच्चे थे, टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, फिर ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स जो भी थे वहाँ पे, वो सब उस स्पॉट पे आके गैदर हुए बिकॉज दे ऑल वर प्लानिंग टू सेव दैट व्हेल। A teacher shouted, use anything that holds water. Pour water over the whale. Wet your scarves, shirts and jackets and place them on the whale. टीचर ने ज़ोर ज़ोर से सबको बोलना चालू किया कि कुछ भी जो चीज़ में पानी होल्ड होता है वो यूज़ करो। अभी जैसे अगर आपका कपड़ा पानी में जाएगा तो क्या होगा, गीला हो जाएगा, राइट। और फिर वो पानी आके वो पानी वाला जो गीला कपड़ा होगा उसको वो व्हेल के ऊपर रखेंगे तो उसको उसके ऊपर पानी लगेगा, राइट। इसीलिए टीचर ने क्या बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि बकेट्स होते हैं, पेल्स होते हैं, राइट, तो वो सारी चीज़ें यूज़ करो जो पानी होल्ड करता है और उसके ऊपर डालो, व्हेल के ऊपर पोर करना है वो पानी। वेट योर स्कार्व्स, shirts and jackets and place them on the wheel. The children fetched mugs, buckets, spare tires, bed sheets, anything they could find in the bus. They ran to the sea, filled them with water, and then they ran back to the calf and threw the water over it. जो बच्चे थे वहाँ पे वो सब लेने गए जो मग्स और वगैरह उनके पास जो था, मग्स थे, बकेट्स थे, स्पेयर टायर मतलब उसके अंदर फिल किया जाता है ना पानी। स्पेयर टायर मतलब अगर कहीं पे गाड़ी बिगड़ जाए तो वो दूसरा एक एक्स्ट्रा टायर रखते हैं हम लोग, है ना, 4 व्हीलर में। वैसे ही वो वाला स्पेयर टायर जैसा कुछ होगा, या फिर बेडशीट्स है जो बड़ी बड़ी होती है उसको पूरी गीली करके उसके ऊपर लगाने के लिए। जो भी उनको मिला बस के अंदर वो सारी चीज़ें वो लोग लेके आ गए। द रैन टू द सी एंड फिल्ड देम विथ वाटर। और फिर पानी से अभी मग्स बकेट्स वगैरह जो होंगे वो पानी से भर के लेके आते थे। एंड दे यूज टू रन बैक टू द काफ, और उसके ऊपर पानी गिराते थे। डोंट कवर द ब्लो होल एंड द फिन, द व्हेल नीड्स टू ब्रीथ, Miss Senuti shouted to the children who covered the calf with wet clothes. Many children dug a pit around the calf. So सब लोग ऐसे कर रहे थे, तब कुछ बच्चों ने ऐसा शायद गलती से कर दिया हो, दे डिडंट नो दैट कि वो जो ब्लो होल होता है वहाँ से वो लोग ब्रीथ करते हैं। सो डोंट कवर दैट ब्लो होल, टीचर ने बोला उनको, क्योंकि वेल को ब्रीथ करने के लिए वो ब्लो होल चाहिए होता है। सो डोंट कवर इट, राइट। एंड शी शाउटेड टू द चिल्ड्रन हु कवर्ड द काफ विद द वेट क्लोथ्स। मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, वो गीले कपड़े को उसके ऊपर लगा रहे थे, फिर वापस गीला करेंगे, वापस आके लगाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने गलती से उसका जो ब्लो होल होगा वहाँ पे भी उसको कवर करने का ट्राई किया होगा। इसीलिए उनकी टीचर ने कहा कि डू नॉट कवर द ब्लो होल एंड द फिन बिकॉज दे नीड दैट फॉर ब्रीदिंग। अभी कुछ बच्चे जो थे उन्होंने क्या किया, उसका वो काफ जहाँ पे फिट हो गई थी उसके आजू बाजू से सारी मट्टी निकाल दी, जो सैंड थी वहाँ पे वो निकाल दी, ताकि जब वो पानी आए तो क्या होगा, वो पानी उसके अंदर फिल हो जाएगा। वो जो गड्ढे जैसा खोदा है, अभी पिट का मतलब क्या होता है, इट्स गिवन ओवर हियर, सी अ वाइड एंड डीप होल इन द ग्राउंड। सो द किड्स स्टार्टेड डगिंग अराउंड इट, ताकि वो जो पानी का भी वेव आएगा, जो टाइड आएगा, वो क्या होगा, उसके ऊपर गिरेगा तो पानी नीचे धीरे धीरे फिल होने लगेगा, और जैसे जैसे पानी फिल होगा तो वो ऊपर आता जाएगा, राइट। इसीलिए बच्चों ने वहाँ पे पिट खोदना स्टार्ट किया। अराउंड द काफ 2 hours went by. The tide filled the pit with water. Everyone was tired, but nobody stopped pouring water. मतलब 2 घंटे तक उन लोगों ने यही काम किया, तब जाके जो टाइड आ रही थी वो क्या हुआ, उसकी वजह से जो आजू बाजू खड्डा मतलब ऐसे पिट खोद के रखा था वहाँ पे पानी भर गया। एवरीवन वॉज वेरी टायर्ड, बाकी सभी लोग टायर्ड थे क्योंकि सब लोग
सब लोग ही पानी ला ला के उसके ऊपर डाल रहे थे, है ना. सो एवरीबडी वॉज टायर्ड. लेकिन किसी ने भी व्हेल के ऊपर पानी पोर करना बंद नहीं किया. नोबडी स्टॉप्ड पोरिंग वाटर बिकॉज ऑब्वियसली द व्हेल लिव्स इन वाटर, सो इट नीड्स वाटर टू लिव, राइट. इसीलिए उसको पानी की बहुत ज़रूरत थी, वरना वो मर जाती, राइट. इसीलिए उन्होंने पानी पोर करना कंटिन्यू रखा. So students, here we will stop our story. I know it's quite interesting, but we will continue with the remaining part of the story in the next video. I hope you understood the story till now. If you want, you can read the story fully so that when I will explain you the remaining part, it would be a lot easier for you to understand. Okay.